جہاد اسلامی فلسطین کے ڈپٹی سیکریٹری جنرل محمد الہندی نے کہا کہ امریکہ جنگ غزہ کے آغاز سے ہی صہیونی جرائم میں شریک رہا ہے اور وہ کانگریس کے جواز کے بغیر ہی اسرائیل کے ساتھ ہتھیاروں کا سمجھوتا اور اسے مسلسل ہتھیار فراہم کرتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ بغیر کچھ کیے اس کے قیدی رہا ہو جائیں۔ محمد الہندی نے کہا کہ امریکہ جنگ بندی نہیں چاہتا اور صہیونی حکومت امریکی حمایت سے غزہ کے شمالی علاقے کے جنوبی علاقے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت غزہ میں حائل علاقہ بنا کر غزہ کا رقبہ چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے قبل تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے اعلان کیا تھا کہ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے کے لیے امریکی حکومت کو عملی اقدام کرنے ہوں گے تاکہ غزہ میں قحط، بھوکمری اور شدید ترین انسانی المیوں کو روکا جا سکے۔ تو یہ بات جو ہے وہ کہی گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس قسم کی باتیں کوئی سن رہا ہے؟ کیا کسی پر اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے؟ کیا واقعی لوگ جو ہے وہ اس بات کے فکر میں ہے کہ یہ جنگ روکی جائے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ 3-4 مرتبہ آپ اگر دیکھیں تو یو میں، اقوام متحدہ میں باقاعدہ تجویز جو پیش کی گئی جنگ بندی کی، 145 سے 150 ملک حمایت بھی کرتے ہیں، جنگ بندی کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں، لیکن امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ ویٹو کیوں کرتا ہے؟ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ہم 2 نیشن تھیوری پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو مان، اور دوسری طرف جنگ بھی جاری۔ آخر یہ ہے کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے امریکہ کی اصل تصویر سامنے آ گئی، اور جو ایران ہمیشہ امریکہ کے بارے میں کہتا آیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ شیطان بزرگ ہے، تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے تو خود امریکہ اس کے لیے ذمہ دار ہو رہا ہے، کیونکہ آخر کیوں جنگ بندی امریکہ نہیں چاہتا؟ کون سی انا کو ٹھیس ہو رہی؟ یا تو پھر جو بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے ہاں سے زیادہ جو ہے وہ اسلحے فروخت ہو جائے، زیادہ سے زیادہ، اور معاف کیجئے گا، امریکہ میں جو لابنگ کرنے والے لوگ ہیں، جو انڈسٹریل ہیں، ان میں اسلحے والے لوگ زیادہ ہیں۔ امریکہ میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ اسلحہ خریدنے کے لیے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے، جس کو دل چاہے وہ جا کر کے اسلحہ خرید سکتا ہے۔ تو جہاں پہ ایسا نظام ہو، یعنی اسلحہ بیچنا جو ہے وہ قانونی طور پر جائز ہو اور کھلا، یعنی سبزی کی طرح جہاں پہ اسلحے فروخت ہوتے ہوں، تو وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اس کو بیچنے کے لیے، اور پھر جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایران اسلحوں کے معاملے میں منظر عام پر آیا، تو کہیں یہ ڈر تو امریکہ کو نہیں ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ہتھیار جو ہے وہ پرانے ہتھیار رکھے رہ جائیں، اور نئے ہتھیار جو ایران بنا رہا ہے، نئے ڈرون جو ایران بنا رہا ہے، اس کی مارکیٹ جو ہے وہ پھیل جائے۔ کہیں یہ ڈر تو نہیں؟ کئی طرح کی باتیں دیکھیے سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ جب امریکہ جنگ روکوانے کے لیے تیار نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ سوال تو کھڑے ہوں گے نا، سوال تو پوچھا جائے گا کہ اس کے پیچھے مقصد کیا، کیوں امریکہ اس طریقے کی حرکت کر رہا ہے؟ تو بہرحال بہت سارے لوگ ہم سے، شان حیدر رضوی صاحب نے لکھا ہے کہ امریکہ کی فورس ہیلپ قائم بنانے کے لیے گنجا لاؤ لشکر لے کر پہنچ گیا ہے، یہ مدد کرنا نہیں بلکہ اپنا اڈا بنانا ہے۔ بالکل بالکل یہ صحیح ہے شان حیدر رضوی صاحب، کیونکہ مدد کیا مطلب ہے مدد کا؟ سوال یہ ہے، اگر مدد ہی کرنی ہے تو پہلے جنگ رکوائی جائے، پہلے اسرائیل کو لگام دی جائے اور اپنے جو فورس ہے اس کو روکا جائے۔ یہ مدد کا ڈرامہ اب نہیں چلے گا میرے خیال۔ دنیا سمجھ گئی ہے، دنیا جان گئی ہے کہ یہ مدد کے نام پر دراصل پوری دنیا پہ قبضہ کرتے آئے،
कि साहब हम इनकी मदद करेंगे, हम वहां जा करके अपनी फौज कायम कर देंगे, हम ये कर दें, और इस बहाने से सुपर पावर। लेकिन इजराइल में वो चीज फेल हो गई, इजराइल में वो चीज नाकाम हो गई। ऐसा लग रहा है, मैं जो हालात देख रहा हूं उस पे तजिया पेश कर रहा हूं और आप इसके गवाह हैं। तो इसलिए शान हैदर रिजवी साहब, मुझे यही लग रहा है कि ये जो बात आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है और बिल्कुल जायज बात है और बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। अब्दुल बारी पटेल साहब लिख रहे हैं, आज यमन के अंसारुल्लाह ग्रुप ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जिसकी स्पीड 10,000 किलोमीटर पर आवर है, और आज यमन ने एक अमेरिकी जहाज को, बिल्कुल ये हमले देखिए, कल भी शौकत भारती साहब ने एक तफसील से बयान किया कि बहुत बड़े हमले ये अंसारुल्लाह की तरफ से हो रहा है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यमन यानी रेड सी में भी हलचल बहुत तेज है। और आप देख लीजिए कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इस किस्म के दूसरे मुल्क अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यमन टस से मस नहीं हुआ। हौती जो है वो अपनी जगह पर कायम है, और यमन ने तो साफ साफ कह दी, हौती ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हम तो इजराइल के जहाज नहीं जाने देंगे, हम बिल्कुल जो है वो किसी बात को सुनने वाले नहीं है, और हमारे पास फौज है। और अभी तो ऐसी ऐसी पारी बाकी है कि जिससे अमेरिका हिल जाए, ब्रिटेन और दूसरे ममालिक हिल जाएंगे। और आप देखिए कि 6 महीने की जंग हो गई है और इसी तरीके से हिजबुल्लाह भी बहुत बड़े हमले कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, जंग जारी है और जंग हो रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जंग अगर जंग की तरह हो तब भी मुनासिब मालूम होता है, लेकिन जंग के नाम पर बच्चों को मारना, जंग के नाम पर भूख से लोगों को मार देना, ये कहीं से कहीं तक इंसाफ की बात नहीं। अनिल शर्मा जी, सभी मित्रों को सलाम, नमस्ते, आदाब। बिल्कुल अनिल शर्मा जी, जयदीप सिंह बुंदेला वो सारी दुनिया को मूर्ख समझता है, लेकिन जयदीप सिंह बुंदेला साहब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा सोचने वाला खुद मूर्ख नहीं है? क्योंकि दुनिया बहुत अवेयर हो गई है। देखिए वो दौर और था जयदीप सिंह बुंदेला साहब की जब खबर पहुंचने में बड़ा वक्त लगता था। आज एक सेकंड में आपने क्या बात की, अमेरिका में वो हिंदुस्तान का इंसान बैठा सुन रहा है, देख रहा है। तो ऐसे में ऐसे तसव्वुरात पाल लेना ये तो बेवकूफी है। कैसे वो मूर्ख समझ रहा है? ये मूर्ख नहीं है, दरअसल अपने आप को मूर्ख बनाना है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, दुनिया बहुत डेवलप कर चुकी है, और यही वजह है आप देखिए कि आज अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। मोहम्मद सलमान साहब, ये निसार अली मोमिन लिख रहे हैं, कतर पे ये दबाव आया है कि हमास के लीडरों को डिपोर्ट किया। बिल्कुल ये दबाव है कि डिपोर्ट किया जाए, लेकिन वही बात है ना, मैंने शुरू में कहा कि आखिर क्या आंखों का पानी मर गया है? क्या अल्लाह के सामने सजदा रेज होने वाले अल्लाह से नहीं डरते, बल्कि वो मगरबी ताकतों से डरते हैं? हाँ? सवाल यह है कि अल्लाह के हुजूर में जब ये पेश होते होंगे तो क्या जवाब देते होंगे? हाँ? क्या क्या दुआ करते होंगे? सवाल ये है ना। हाँ? हाँ? सवाल ये है, तो फिर फायदा क्या है? ये मुमकिन नहीं है कि एक तरफ भूख और प्यास से बच्चे तड़प रहे हों और दूसरी तरफ आप जो है वो रोजा रख रहे हैं। आप जो है ना, भाई रोजे का क्या मकसद, क्या है इसकी स्पिरिट, क्या मकसद है इसका रोजे का? हाँ? क्या मकसद है इसकी स्पिरिट को तो समझा जाए। हाँ? अगर एहसास अपने अंदर पैदा करना, तो एहसास तो पैदा नहीं हो रहा है, तो भूख रहने से फायदा क्या है? अगर आपको ये नहीं अंदर ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये जज्बा नहीं पैदा कि भूख से लोग मर रहे हैं और उनकी मदद होनी चाहिए, तो फायदा क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने सलाम लिखा था। नौरेज आलम साहब लिख रहे हैं कि हाइपरसोनिक पुदीना हाइपरसोनिक मिसाइल
बना लिया है सफल परीक्षण। इसके अलावा साजिद अली साहब लिख रहे हैं, क्या सऊदी अभी कुछ नहीं कर रहा है, अब तो रमजान। देखिए साजिद अली साहब, सिर्फ सऊदी नहीं बल्कि और ममालिक भी, तुर्की क्या कर रहा है, सवाल ये है। सवाल ये है कि मिस्र क्या कर रहा है, सवाल ये है कि जॉर्डन क्या कर रहा है, सवाल ये है कि यूएई क्या कर रहा है, सवाल ये है कि और जो ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं। हाँ? कोई ये नहीं कर रहा है कि सब मिल करके इजराइल पे अटैक कर दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या जंग को नहीं रोक पा सकते? एक बयान मैंने कहा कि अगर इनकी तरफ से जारी हो जाए तो इस जंग को रोका जा सकता है, लेकिन न जाने किस बात का डर है। क्यों जो है ये नहीं कहते कि अगर जंग नहीं रोकी गई तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, हम किसी तरीके की मदद नहीं करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा लिख रहे हैं कि अमेरिका पोर्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ गई। देखिए इनका पूरा मंसूबा जो है बफर जोन बनाने की गजा में, ये पूरा इनका मंसूबा है और इसीलिए बड़ी बड़ी ताकतें इसमें शामिल है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, जो 6 महीने से मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, कि ये भी इनकी बहुत बड़ी भूल है, ये नाकाम होंगे। क्योंकि अभी भी इस हमास जो है वो खामोश नहीं बैठा है। इसके अलावा शान हैदर साहब ने लिखा है, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। कई और लोगों ने सवाल किए थे, मैंने कहा था कि सवाल जो हुआ करे वो आप फिर से दोबारा डाल दे। मोहम्मद शफीउल्लाह, अमेरिका ने कहा है कि सहायता सामग्री पर इजराइल द्वारा किए गए हमले की जांच करेगा। कितना नाटक करता है। बिल्कुल ये नाटक है, ये ड्रामा है, ये बेवकूफ बनाना है। लेकिन बेवकूफ कोई नहीं बन रहा है, दुनिया समझ गई। अमेरिका बेनकाब हो गया पूरी तरीके से, अमेरिका की पॉलिसी बेनकाब हो गई है, अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। और जो बात ईरान कहता था कि अमेरिका शैताने बुजुर्ग है, ऐसा लग रहा है कि इस पर मोहर खुद अमेरिका ने लगा दी। क्योंकि जब 145 150 मुल्क कह रहे हैं कि जंग को रुकवाना चाहिए और इसकी हिमायत में वोट करते हैं, तो अमेरिका ने वीटो क्यों किया? ये दुनिया बार बार सवाल करेगी। दुनिया सवाल करेगी कि जब इजराइल बच्चों को मार रहा है तो आप मदद क्यों कर रहे हैं, आप क्यों असलहे भेज रहे हैं? दुनिया सवाल करेगी कि जब यूएनओ की टीम जो मदद के लिए जा रही है तो वहां पे उन्हें क्यों रोका गया, उन्हें क्यों वहां से भगाया गया, और कितने लोग आप देखिए डब्ल्यूएचओ के मारे गए, कितने जो अस्पतालों में काम करने वाले हैं वो मारे गए। सवाल यह भी किया जाएगा कि जब अस्पतालों, यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों को निशाना बनाया जा रहा था तो आखिर ऐसे में अमेरिका ने मुदाखलत क्यों नहीं की? ये वो सवाल है जिनका जवाब अब अमेरिका मुस्तकबिल में, भविष्य में नहीं दे पाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो आज आप लोग कह रहे हैं कि ये सब ड्रामा है और अमेरिका ड्रामा कर रहा है, तो वो एक परसेप्शन तो बन गया ना, एक बड़ा परसेप्शन बना है। और मोहम्मद शफीउल्लाह लिख रहे हैं कि इजराइल ने नुसैरात और ब्यूरिज रिफ्यूजी कैंप और इनके गोदामों में 2 दर्जन जाने की खबर है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि रोज बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, और खुदा न खास्ता अगर कहीं कहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि हमास ने कहीं, अगर इजराइल कहीं हिजबुल्लाह ने अगर इजरायली बस्ती पर हमला शुरू कर दिया और अमेरिका और ईरान अगर सामने आ गया, तब अंजाम क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लोग बंकरों के अंदर छिपे हुए हैं, कारोबार ठप हो चुका है, महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। तो इसलिए, और लोगों को अपनी जान की फिक्र है, उनको नहीं पता कि कब कहां से क्या हमला हो जाए। जाहिर है कि अगर ये खतरा पैदा हो जाए तो जिंदगी कैसे होती है, आप समझ सकते। बहरहाल ये तमाम ऐसे सवालात हैं, कई बड़े सवाल हैं, लेकिन मैं आज यहीं पे अपनी गुफ्तगू को रोकूंगा। मैं आज बस यहीं पे, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मैं समझता हूं कि आप लोगों की क्वेरी है, लेकिन अब तो अमेरिका, जयदीप सिंह बुंदेला लिख रहे हैं कि अब तो अमेरिका का जहाज शहरई में तो ब्रिटेन का जहाज अख्तारी में उड़ाने की जरूरत है।
تو یہ तमाम इस तरीके की बातें हैं, लेकिन आज मैं यहीं पे प्रोग्राम अपना रोकूंगा। और शौकत भारती साहब नहीं आ पा रहे हैं, और मैं कुछ वीडियोस जो शौकत भारती के वो भी अपलोड करूंगा। तो आप ज़रूर जो है वो एमएमसी न्यूज़ इंडिया को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मुझे आज के लिए माफ़ कर देंगे, क्योंकि आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूँ। और मैं फिर इंशाल्लाह कल दिन में या फिर उसी वक्त मैं हाजिर होऊंगा 10:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।